guys, myself Vipanpreet Kaur. So as you all know, we are going on our new chapter 2, the flower, and we have completed. We have studied in the part 1 till the types of pollination. We have studied the three topics. Four holes of a flower, two types of a flower, and two types of a pollination. We have studied it very well. And if anyone has any type of doubt in these topics, you can comment me in the comment section. I'll be explaining it. And some children, someone comment me that, ma'am, we are getting doubt in the androecium and gynoecium. सो आई नो इट, मुझे पहले ही पता था कि आप लोगों को इसमें डाउट होगा. मैंने उसे तभी 2 बार एक्सप्लेन किया था. अभी भी आपको डाउट है तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगी डाउट वीडियो में. मैं पहले ही सोच लिया था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी इट वेरी वेल. आई विल एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन द डाउट वीडियो. एंड if anyone arises any type of doubt, you can comment me silly to silly, minor to minor doubt. I'll be explain it. क्या कैसा भी डाउट हो आपके पास, मैं उस डाउट को एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो नाउ मूव टू अवर टॉपिक्स. So before starting this part, you do like, share and subscribe my channel and turn on the bell icon to get the notification of the next chapters and parts of those chapters. Okay, so now move to our topics. Oh, I want to tell you something that one of the fabulous actor singer has passed away, and all of us very sad about it. He has gone on the 29 May, and we all are very sad. But don't focus too much on that. I'm seeing a few days that मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि कई सारे चिल्ड्रंस स्टडीज़ को छोड़कर शुभदीप सिंह सिद्धू जी के पीछे, मतलब उनके वीडियोस देख रहे हैं, उनके सॉन्ग सुन रहे हैं, उनके क्लिप्स देख रहे हैं, उनकी न्यूज़ देख रहे हैं. और दैट्स उनका एम क्या था आप लोगों को पता है? वो अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे करना चाहते थे, ग्रो करवाना चाहते थे कि हाँ वो भी अच्छे कंट्री, अच्छा स्टेट बन सके. तो उनके एम को पूरा करिए. अब कुछ हो सकता नहीं, बट हम लोग उनके एम को पूरा करके कर सकते हैं ना. सो फोकस ऑन इट. उन्होंने अपने लास्ट सॉन्ग्स में बोला था कि अगली जनरेशन एजुकेट मिलेगी. वी नो दैट्स द मीनिंग दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एजुकेटेड वेरी वेल. सो फोकस ऑन इट. Okay, we are very sad that it was our fabulous singer was passed away, and I am also very sad, and I know that you all are very sad about it. And please, I am here to tell you that don't focus on it too much. Focus on your studies. Your PTs is coming soon, and we have to complete our syllabus as soon as possible. So focus on it. Give your best in your PTs, in your results. So his aim is to be completed that कि वो जो चाहते थे अपनी कंट्री को आगे ग्रो कराना चाहते थे, वो एम उनका पूरा हो जाएगा. ओके, सो फोकस ऑन इट. नाउ मूव टू अवर टॉपिक्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अब आपके पीटीज आ रहे हैं, वो उसके जो मार्क्स है आपके एग्ज़ाम्स में ऐड होते हैं. सो अगर आप पीटीज अच्छे नहीं करोगे, इनके मतलब कि इनका ही देखते रहोगे, आप पीटीज अच्छे से नहीं दोगे, तो आपका रिज़ल्ट डाउन जाएगा. आपके एग्ज़ाम्स में, एनुअल्स में हो गया, हाफ ईयर्लीज में हो गया, रिज़ल्ट डाउन जाएगा. एंड आई डोंट वांट, मुझे ये रिज़ल्ट नहीं चाहिए. मैं नहीं चाहती कि किसी का भी रिज़ल्ट डाउन जाए. आई विल बी गिविंग माई बेस्ट टू टीच यू. सो मैं अपना बेस्ट दूँगी आपको पढ़ाने में. तो आप लोग अपने स्टडीज़ पे फोकस करिए, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, मैं आपको डाउट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो आई विल बी ट्यून ऑन यूट्यूब फॉर सम डेज because of your PT is coming soon, and we have to complete the chapter 2 as soon as possible, and our doubts also. हम लोगों को अपने डाउट भी कंप्लीट करने हैं. Now move it. Now move to our topic, agents of pollination. We have studied in the part 1 about the 3 topics: holes of pollination, types of flowers, holes of a flower, types of pollination, and types of a flower. We have studied about these 3 topics in the last part, and now we are going to start our new part from the new topic, agents of pollination.
let's get started about it. Now, for cross pollination to occur, हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन क्या पढ़ा था. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बताया गया था कि क्रॉस पॉलिनेशन इज द पॉलिनेशन in which the pollen grains are transferred from the one flowers enter to the stigma of another flowers. Okay, another plant's flower. तो उसमें क्या बोला गया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं वो दो पौधों में होते हैं. एक पौधे के प्लांट से दूसरे पौधे के दूसरे पौधे के फ्लावर में ये ट्रांसफ़र होते हैं. बट वो फ्लावर जो सेम काइंड के होते हैं, बट प्लांट्स अलग अलग होते हैं. नाउ ऐसी क्रॉस पॉलिनेशन के अकर करने के लिए एन एजेंट शुड बी अवेलेबल टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स. एक एजेंट की ज़रूरत होती है कि हाँ वो जो है पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर सके. पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक एजेंट, एक गाहक की ज़रूरत होती है. द 4 कॉमन एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर. अब हम 4 कॉमन एजेंट्स पढ़ेंगे जो क्रॉस पॉलिनेशन के हैं. उन 4 एजेंट्स को पढ़ेंगे. फर्स्ट इज इंसेक्ट्स के द्वारा कैसे होता है ट्रांसफ़र. बटरफ्लाइज, बीज एंड अदर इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स फॉर कलेक्टिंग नेक्टर, हनी. सो इंसेक्ट्स एक एजेंट है पॉलिनेशन का. सो उसको पढ़ते हैं. इंसेक्ट्स में क्या है, बटरफ्लाइज हो गए, बीज हो गए और दूसरे इंसेक्ट्स फ्लावर्स पे आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, हनी कलेक्ट करने के लिए. When the insect visits a flower to collect nectar, जब एक इंसेक्ट जो है एक फ्लावर पर विजिट करता आता है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, द pollen grains stick to its mouth parts, wings, legs, etc. तो जब कोई इंसेक्ट जो है एक फ्लावर पर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए आता है तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसके माउथ पार्ट पे चिपक जाते हैं. जैसे कि विंग्स हो गया, लेग्स हो गया, इन पे चिपक जाते हैं. तो व्हेन द इंसेक्ट विजिट अनदर फ्लावर, जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे पहुंचता है ऑफ द सेम काइंड, द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द बॉडी मे बी फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा एंड ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. सो जब वही इंसेक्ट एक फ्लावर पर जाकर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए बैठा था तो उसके माउथ पार्ट पे पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं. विंग्स पे हो गए, लेग्स पे हो गए और भी कई चीज़ों पे अगर स्टिक हो जाते हैं तो वो जब दूसरे फ्लावर पर विजिट करता है उसी काइंड के सेम काइंड के फ्लावर पे वो विजिट करता है तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है उसकी बॉडी से गिर जाते हैं तो उनके स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और वहीं से फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसी फ्लावर का. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेशन. अब पॉलन ग्रेन्स का इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसफ़र होना उसे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं. क्या बोला गया था इस पर, बटरफ्लाइज, बीज या कोई भी और इंसेक्ट्स जो कि फ्लावर्स पे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाते हैं. और जब वो इंसेक्ट्स जो है कोई भी इंसेक्ट अगर एक फ्लावर पर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए गया है और वहाँ से उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स जो उसके माउथ पार्ट्स पर या विंग्स पर या लेग्स पर और भी कई जगह पर अगर स्टिक कर जाते हैं तो जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर पहुँचता है, उसी काइंड के दूसरे फ्लावर पर पहुँचता है तो वो पॉलन ग्रेन्स जो गिर जाते हैं और वहीं से फर्टिलाइजेशन होता है. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन बाय इंसेक्ट, जो पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसे हम इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं. मस्टर्ड, मैरीगोल्ड, दहलिया एंड सल्विया आर सम ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. मस्टर्ड हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, दहलिया हो गया, सल्विया हो गया, ये कुछ इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेट किए हुए फ्लावर इंसेक्ट्स करते हैं. द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर. अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कौन से हैं? यूजुअली लार्ज. वो कैसे होते हैं? द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर यूजुअली लार्ज, ब्राइटली कलर्ड, फ्रैग्रेंट एंड प्रोड्यूस नेक्टर. जो इंसेक्ट्स के द्वारा फ्लावर्स पॉलिनेट किए जाते हैं वो उनके द्वारा हो जाते हैं. एक फ्लावर पर नेक्टर कलेक्ट करने के लिए गए, दूसरे फ्लावर पर गए तो उनके अंदर पर पॉलन ग्रेन्स गिर जाते हैं. मतलब वो जब पहले फ्लावर पर गए थे नेक्टर कलेक्ट करने के लिए तो उनके जो माउथ पार्ट हो गया, विंग हो गया, लेग्स हो गया, अब भी कई पार्ट्स पे अगर पॉलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं और जब वो दूसरे फ्लावर पर
पहुंचता है उसी काइंड के, तो वो गिर जाते हैं, तो वहीं से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वही ऐसी तरीके से जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किए हुए फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादातर बड़े लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर, उनका कलर बहुत ब्राइट होता है और वो फ्रेगरेंट मतलब खुशबूदार होते हैं, और वो नेक्टर को प्रोड्यूस, उनमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो नाउ move to our second agent of pollination, wind। अभी हम लोगों ने एक एजेंट पढ़ा पॉलिनेशन का, दैट इज इंसेक्ट, एंड फर्स्ट सेकंड इज विंड। अब इसको पढ़ते हैं। सम प्लांट्स लाइक मेज, पाल्म, पाइन एक्सेट्रा, कुछ प्लांट्स जैसे कि मेज हो गया, पाल्म हो गया, पाइन हो गया, प्रोड्यूस ड्राई पॉलन इन लार्ज क्वांटिटी। वो जो है ड्राई पॉलन, सूखा हुआ पॉलन ग्रेन्स को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दिस फ्लावर्स मैच्योर, जब ये फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, द पॉलन ग्रेन्स आर ब्लोन अवे, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ जाते हैं बाय द विंड, विंड के कारण वो हवा से वो उड़ जाते हैं। क्या बोला गया है? कुछ प्लांट्स जैसे कि मेज हो गया, पाम हो गया, पाइन हो गया, और भी जो है ड्राई पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ये ड्राई पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जब यही फ्लावर मैच्योर होते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो हवा के कारण उड़ जाते हैं। इफ़ दे हैपन टू फॉल ऑन द फेदरी स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर at the same time the pollination occurs, अगर यही जो हवा के कारण पॉलन उड़ गए हैं, अगर वो एक फेदरी मतलब कि फेदर वाले स्टिग्मा क्या है, एक्सपेंडेड स्टिग्मा था, तो उसी पे अगर आकर एक फ्लावर के, बट वो फ्लावर भी एक ही प्रकार का है, उस पर आकर गिर जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन अकर होता है, फिर वो वही तो सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड, इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। जस्ट लाइक कि एक जैसे कि कुछ प्लांट जैसे कि मेज, पाल्म, पाइन हो गया, ये जो ड्राई पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और जब यही फ्लावर्स मैच्योर होते हैं तो पॉलन ग्रेन से वो उड़ जाते हैं हवा से, तो फिर जब वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं, बट वो फ्लावर एक ही प्रकार का होता है, उसी सेम टाइप का होता है, तो पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ मूव टू अवर थर्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, द वाटर। द काइंड ऑफ पॉलिनेशन वेयर वाटर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज नोन एज वाटर पॉलिनेशन। वो उस प्रकार का पॉलिनेशन जिसमें वाटर जो है एक एजेंट का काम करता है पॉलन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे हम वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें वाटर जो है एक एजेंट, एक गाहक की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है पॉलन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उसे हम वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेशन फ्लावर इज वेलेस्नेरिया। अभी वाटर पॉलिनेटरी फ्लावर का एग्जाम्पल है वेलेस्नेरिया। इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट हुज मेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज्ड, अभी ये जो है वेलेस्नेरिया है, ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसके मेल फ्लावर जो है सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं वाटर में, जिसके ये वेलेस्नेरिया इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। तो इसके जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो जो पानी में होते हैं, सबमर्ज होते हैं, और जो दे लेटर गेट डिटैच्ड अपॉन मैच्योरेशन, उसके बाद ये जो मैच्योरेशन के ऊपर डिटैच हो जाते हैं एंड फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, फिर वो जो है वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। When these floating male flowers happen to come in contact with a female flower, जब ऐसे ही फ्लावर जो है, ऐसे ही मेल फ्लावर जो है एक फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं, द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू इट्स स्टिग्मा, तो उसके पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो क्या था वाटर पॉलिनेशन में? वाटर पॉलिनेशन इज़ अ काइंड ऑफ, इस प्रकार का पॉलिनेशन है जिसमें जो क्या कहते हैं, पॉलन वाटर जो है एक एजेंट की तरह काम करेगा। किस लिए? पॉलन के ट्रांसफ़र के लिए वो एक एजेंट के लिए काम करेगा, एजेंट की तरह काम करेगा।
उसे हम वाटर पॉलिनेशन कहेंगे। और एक एग्जांपल वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का है वेलेस्नेरिया, और ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसके मेल फ्लावर्स जो होते हैं, वो सबमर्ज मतलब कि पानी में होते हैं। और जब कुछ टाइम बाद वो जब मैच्योर होते हैं तो वो उससे अलग हो जाते हैं। वो अलग होकर वो ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो जब यही फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स जो है किसी फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो वही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, ये तो था हमारा थर्ड एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जिसमें वाटर। नाउ फोर्थ एनिमल्स। अब एनिमल्स हैं। आफ्टर देन our agents of pollination topic is completed. For above is a pink box is given. Firstly, read about it. Lotus and Trapa Shingara are water plants, but their flowers are exposed to air and are pollinated by insects. लोटस और जो ट्रैपा है या सिंघरा है ये वाटर प्लांट्स हैं, लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये पानी के ऊपर होते हैं। तो ये जो है इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते, इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। नाउ कम टू अवर फोर्थ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एनिमल्स। Some birds like the hummingbird and animals like bats also act as pollinating agents. कुछ बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए जैसे कि बैट हुआ, ये एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। व्हेन दे विजिट वेरियस फ्लावर्स, जब ये अलग अलग फ्लावर्स पे विजिट करते हैं, दे कैरी पॉलन ग्रेन्स फॉर पॉलिनेशन। ये जो है पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के लिए कैरी करते हैं। बस यही तक है। एनिमल्स इज़ फिनिश। एनिमल्स में क्या था, एनिमल एजेंट में क्या था कि कुछ बर्ड जैसे कि हमिंग बर्ड हो गया, एनिमल्स जैसे कि बैट हो गया, ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जब ये कई सारे फ्लावर्स पे बैठते हैं तो ये अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो हम लोगों ने 4 पढ़े। फर्स्ट इज हम लोग ने इंसेक्ट पढ़ा। फर्स्ट इज इंसेक्ट, देन इज विंड, वाटर, एनिमल्स। ये 4 थे। Our agents of pollination is completed. Now move to the fertilization. Then we will end this part. Okay. Fertilization. After the pollen grains have landed on the surface of the stigma. जब pollen grains जो है स्टिग्मा पर लैंड कर गए, एंथर से स्टिग्मा पर आ गए हैं, दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब्स। और फिर वो जर्मिनेट होते हैं, वो पॉलन ट्यूब्स प्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ द पॉलन ट्यूब्स कंटेन टू डेवलप डाउनवर्ड्स इनटू द स्टाइल। कुछ पॉलन ट्यूब्स जो है वो डाउनवर्ड कंटिन्यू होती हैं, स्टाइल के डाउनवर्ड जाते हैं। दिस पॉलन ट्यूब्स कैरीज द मेल गैमेट्स, और यही पॉलन ट्यूब्स जो होती है मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं। व्हाट इज सेइंग हियर कि जब पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा के सरफेस पर लैंड पहुंच जाते हैं तो जो पॉलन ट्यूब्स तो जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ट्यूब्स को जो प्रोड्यूस करता है वो जो है जर्मिनेट होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स लैंड के उसके बाद वो जर्मिनेट होते हैं, फिर वो पॉलन ट्यूब्स को प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं में से एक ट्यूब जो है वो कंटिन्यू करती है नीचे जाना, टू डेवलप डाउनवर्ड्स। वो नीचे जाना कंटिन्यू करती है, कहाँ पर, स्टाइल में। और वही पॉलन ट्यूब जो है मेल गैमेट्स को कैरी करती है। द पॉलन ट्यूब फाइनली रीचेस द ओवरी। फिर उसके बाद जो पॉलन ट्यूब्स है लास्ट में ओवरी तक पहुंचती है, फाइनली ओवरी तक पहुंचती है। फर्दर ऑन रीचिंग द ओव्यूल, उसके बाद ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ओव्यूल तक पहुँचने के बाद द मेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द पॉलन ट्यूब्स। और उसके बाद जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पॉलन ट्यूब से रिलीज़ हो जाते हैं। वह जहाँ तक आया पहले स्टिग्मा से आए, स्टिग्मा से वो डाउनवर्ड आए ओवरी तक, ओवरी तभी वो पॉलन ट्यूब में ही थे मेल गैमेट्स। उसके बाद जब वो ओव्यूल में आते हैं तब वो पॉलन ग्रेन्स जो है रिलीज़ कर देती है पॉलन ट्यूब। उसके बाद एंड फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। अब जो ओवरी में फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, तो जो मेल गैमेट्स हैं उसके साथ ये फ्यूज़ हो जाते हैं। और द एग सेल लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल टू प्रोड्यूस अ ज़ाइगोट। उसके बाद वो जो है जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ ये फ्यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद ये ज़ाइगोट प्रोड्यूस करते हैं।
ये था फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल सेक्स सेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. अब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स मतलब कि गैमेट्स का फ्यूज़न होना उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम्स लार्जर. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है, जब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूज़न होकर जाइगोट बन जाता है, तो ओवरी जो है बड़ी हो जाती है, लार्जर हो जाती है एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट. तब वो एक फ्रूट में डेवलप होती है. जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो फिर वो जो है स्टिग्मा से जो पॉलन ट्यूब्स को जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो पॉलन ट्यूब्स डाउनवर्ड ओवरी तक जाती है. और वो जो पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको पॉलन ट्यूब्स कैरी करके ओवरी तक जाती है, और ओवरी में जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ पे जाके उन मेल गैमेट्स को रिलीज़ करती है, और उसके बाद वो जो फीमेल गैमेट उसमें प्रेजेंट होते हैं उनके साथ फ्यूज़ करता है एक जाइगोट को प्रोड्यूस करने के लिए. उसके बाद फिर जो मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स का फ्यूज़न होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब ये फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ओवरी जो है बड़ी हो जाती है और वो एक फ्रूट में डेवलप हो जाती है. द ओव्यूल कंटेनिंग द फर्टिलाइज सेल्स डेवलप इनटू अ सीड. और वो ओव्यूल जिसमें एक फर्टिलाइज सेल है, जिसमें एक फर्टिलाइज सेल है, वो उसके बाद फिर वो एक सीड में डेवलप हो जाता है. फेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. हर एक पार्ट के फ्लावर के हर एक पार्ट के फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी रिमेन्स अटैच टू द स्टॉक. फिर जो ओवरी है वो स्टॉक से अटैच रहती है फ्लावर के एंड ग्रोज इनटू अ फ्रूट. फिर वो फ्रूट में ग्रो करती है. द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी डेवलप इनटू अ सीड. और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है वो सीड में डेवलप होता है. द अदर पार्ट लाइक द सेपल एंड पेटल फॉल ऑफ. और उसके बाद जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाता है, जैसे कि सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया. सो दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन एंड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. हम लोगों ने इस पार्ट में 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोगों ने 4 एजेंट्स पढ़े हैं पॉलिनेशन के, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर एंड एनिमल्स. एंड हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा जिसमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनाते हैं और उसके बाद फ्रूट डेवलप होते हैं. तो ये अब हम इसी पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं. आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैरी ऑन करेंगे. जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. इफ़ यू गेट एनी डाउट you can pause it and go back to see that, and if your doubt is not cleared now, then you comment me that ki ma'am I have a doubt in this part, then I'll be explaining it in the doubt video. Okay, so I hope you all understand it, and if anyone has any type of doubt you can comment me minor to minor doubt. I'll be explaining it in the doubt video. I hope you all understand it, and do like, share and subscribe. And I'll be saying it that don't focus on the Sidhu Moosewala too much. Okay, focus on your studies. The PTs is coming soon, so focus in your studies, and do like, share and subscribe my channel, and turn on the bell icon to get the notifications of my next chapters and the parts of those chapters. And stay tuned. Bye bye, have a nice day.